अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। चरण विधि में के આપણે જનરલી બોલીએ કે મને તમારું સાનિધ્ય આપો, એ સાનિધ્યનું શું મહત્વ છે તમારા માટે? પરમાણુનું સાયન્સ છે એમાં બતાવો। જ્યાં સુધી અનુભવી પુરુષ હોય ત્યાંથી એમનું સાનિધ્ય આપણને મુક્તિના માર્ગના પુરુષાર્થમાં એન્કરેજ કરે, એટલે હિતકારી છે। અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે પ્રત્યક્ષ ના હોય તો એમને આપેલા જ્ઞાન દર્શનનું સાનિધ્ય, એટલે દાદા ભગવાને પોતે શું કીધું, અમે પ્રત્યક્ષ હોય ત્યાં સુધી લાભ લો, અમે પ્રત્યક્ષ ના હોય તો તમે સૂક્ષ્મમાં જજો। આવું સાંભળ્યું છે કે નથી સાંભળ્યું? નથી સાંભળ્યું? છેલ્લા 86-87 કેટલી વખત ગયા? સ્થૂળ ના હોય તો સૂક્ષ્મમાં જવાનું, તો પછી આખી નવી વસ્તુ થોડી છે। સ્થૂળનો લાભ મળતો હોય ત્યાં સુધી લઈ લેવો, કારણ કે તમારા એન્કરેજમેન્ટનું સાધન છે। સ્થૂળ ક્યારે ના જોઈએ? સાંભળો, સ્થૂળ એટલે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ કાંઈ ના જોઈએ કેવળ દર્શન થઈ ગયા પછી, કારણ કે પછી પુરુષાર્થ કરવાનો નથી। પણ પુરુષાર્થ કરવાનું હોય અને જો જ્ઞાની પુરુષનું સાનિધ્ય નહીં મળે, માનો કે 5% બાકી છે, 360 માંથી 355% થઈ ગયા, તોય પ્રત્યક્ષ જોઈએ। ના સમજાયું? 1% અજ્ઞાન હોય તોય નરક ગતિના કર્મ બંધાય। સમજાય છે? એટલે જાગૃતિ તો જોઈશે, આમાં ગોળ ગોળ નહીં ચાલે, માટે કીધું। પણ એકવાર કેવળ દર્શન થઈ ગયું પછી વાંધો નહીં, એટલે અજ્ઞાન કલાશ થઈ ગયું તો પછી પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ સવાલ ના રહે। સમજાય છે? અને જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન જે કહેતા હતા કે કામ કાઢી લો, કામ કાઢી લો, એનો મતલબ શું? કે અમે છીએ ત્યાં સુધી આ વિજ્ઞાન સમજી લો, બાકી જ્ઞાન આપ્યું છે, આજ્ઞા આપ્યું, સસાધન તો આપેલા જ છે ને, રોજ નવા આપવાના છે, બોલતા નથી, રોજ નવા આપવાના છે, તો કયું કામ કાઢવાનું હતું? આ વિજ્ઞાન સમજી લો। એ માટે વારંવાર બોલ્યા 85, 86, 87 કે અમારું જ્ઞાન લીધું હશે તોય વિજ્ઞાન સમજવું પડશે ને ચોગરજમથી સમજવું પડશે। ધ્યાન ના કે જ્ઞાન લીધું એટલે પતી ગયું। હવે જો વિજ્ઞાનની મહત્તા ના હોય તો બોલવાની જરૂર ક્યાં હતી? ને છેલ્લે છેલ્લે બહુ બોલ્યા વિજ્ઞાનનું, બહુ બોલ્યા। પણ મહાત્માઓ તે વખતે એટલા જાગ્યા નહીં વિજ્ઞાનના સંદર્ભમાં। દાદા ભગવાન સાથે નજીક રહ્યા, દાદા ભગવાનને ભૂલતા નતા, આ બધા સારો ગુણો એમનામાં હતા, પણ વિજ્ઞાનમય દ્રષ્ટિ ના થઈ। અને માટે દાદાએ છેલ્લે કેવું પડ્યું 87 કે અમારી વાળની ટોચ જેટલું સાયન્સ બહાર ના પડ્યું। પેલા પૂછે જ નહીં તો હું કીધું, પૂછે જ નહીં તો શું કરું? શું કરે? ના, અમે નાના હતા એ તો બરાબર છે, હું મારી પોતાની વાત કરું તો મને ક્યારે દાદાની વાત નથી સમજાય એવું બન્યું જ નથી। હું કઈ રીતે પૂછું? એ જે બોલે એ મને વિજ્ઞાન સ્વરૂપે જ સમજાતો હતો, વ્યવહાર સ્વરૂપે નહીં। પછી હું શું પૂછું? અને દાદા ભગવાનને પોતાને ખબર હતી કે આ નિરંતર ઉપયોગમાં જ રહેશે, એમની હાજરીની વાત કરું છું। એવું નહીં કે મેં આ દાદાને આ જ્ઞાન વિશે નથી પૂછ્યું, સામાજિક ને વ્યવહારિક પ્રશ્નો નથી પૂછ્યા।
એવું નથી કે મેં જ્ઞાનના નથી પૂછ્યા, પણ વ્યવહારનું તો પૂછ્યું કે દાદા મને જોબ નથી મળતી, વિધિ કરી આપો, મારા ફાધર બીમાર છે, વિધિ કરી આપો. આવું નથી પૂછ્યું મેં. સમજાય છે? વિજ્ઞાન સમજાવ્યું તું ને. શું સમજાવ્યું તું? એટલે મારે પૂછવાનો સંજોગ ના આવ્યો. અને દાદાને પહેલી વખત મળ્યું તો દાદાએ શું કીધું? હું જે જ્ઞાન આપું છું જ્ઞાન ગળથુથીમાં લઈને આવ્યો છે, અનુભવ બાકી છે. આ પહેલી મીટિંગની વાત કરું છું, ફર્સ્ટ મીટિંગ. 17 વર્ષનો હતો. કેટલો? વિચાર કરો. આવો એટલે એમને જોયું હશે ને. મારી પાસે જોવાની ક્ષમતા નથી, પણ એમની પાસે હતી તો એમને જોઈને કીધું. આ ને છેલ્લા 4 અવતારથી તું આચાર્ય છું, એ બી એમને જ જોઈને કીધું ને. મને તો આજે દેખાતું નથી. હું ચોખ્ખું જ કહું છું, મને દેખાતું નથી. સમજાય છે? એ કે તું ચારિત્ર લઈને આવ્યો છું અને જ્ઞાન લઈને આવ્યો છું, 2 લઈને આવ્યો છું. ત્યારે તું મને વારંવાર કહેતા હતા કે તું અમારી સાથે અમેરિકા આવ્યા, અમેરિકા આવ્યા. એકે વાર નથી આવ્યા. દાદાએ 4 વખત કીધું. 4 વર્ષ, પહેલા વર્ષને બાદ કરતા 4 વર્ષ કીધું. એવું. અને આઉટ ઓફ 32 શું કીધું? આઉટ ઓફ 32 32 ની વચ્ચે ક્યારે? અને હું ના પાડું તો પછી બીજાને ક્યાં નહીં. સમજાય છે મારી વાત? એટલે દાદાએ જે મને સિલેક્ટ કર્યો હતો ને, એ સ્પેશિયલ તરીકે કર્યો હતો, નહીં કે કોમ્પિટન્ટ તરીકે. ભાઈ આ નહીં તો આ, એ રીતે નતો કર્યો. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ માય પોઈન્ટ? એવું હતું કે ભાઈ આ નહીં આવે તો આ આવશે, આ નહીં આવે તો આ આવશે, એવું નતું. એવું હતું બીજાને કહે કે ના કે. એટલે એમને જે જોયું હશે અમારામાં તે વખતે, અમે તો એક બિલકુલ યંગ હતા. એટલે 24-25 વર્ષના હતા. દાદાને મળ્યું ત્યારે તો 17 વર્ષનો, પણ આ પ્રવાસે ગયા ત્યારે હું 22 વર્ષનો હતો. 21નું પતિને 22 વર્ષનો હતો. એવું તે વખતે નાના જ કહેવાય ને. અમે તો કોલેજમાં ભણતા હતા, જો M.Com ભણતા હતા. એવું. તમે છેલ્લી વખત પણ નથી આવ્યા? દાદા સાથે છેલ્લી વાર પણ નતા આવ્યા? ના, દાદાની છેલ્લી ટ્રીપ એટલે 87. છેલ્લી 87. એ વખતે તબિયત બિલકુલ ખરાબ હતી. બેસી ના શકે, બોલી ના શકે, ખાલી દર્શન આપ્યો બસ. ભાવના કેટલી ઊંચી હતી, જગત કલ્યાણ થાય, દર્શન કરશે, લોકો દ્રષ્ટિ પડશે તો એનું કલ્યાણ થશે. છેલ્લે જ્ઞાન વિધિ આપી તો પણ, છેલ્લે જ્ઞાન વિધિ આપી અમને, પણ જ્ઞાન વિધિ આપ્યા પછી આજ્ઞા સમજાય શક્યા? જોર જોઈએ ને, તાકાત જ નથી. આ વિધિ તો માંડ પૂરી કરી હતી. જે અમે સાંભળ્યું હતું, અમે જોયું નતું, સાંભળ્યું હતું કે 1 કલાકની જે વિધિ બોલાવવાની છે, दादा માંડ पूरी કરી थी। मेरे को एक प्रश्न पूछना था ये कि जैसे दादाजी ने बताया है कि भाई जो है पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। यस। तो इसमें एक तो जो भुगतान वाला पार्ट आता है कि भाई पुण्य का भुगतान आया या पाप का भुगतान आया। यस यस। तो वो एक कुदरती रचना के रूप में है, व्यवस्थित है, ठीक है। तो उस पाप और पुण्य के भुगतान के टाइम पर जब हमें अज्ञान में होते हैं, जब हमको पता नहीं होता है कि भी क्या ज्ञान क्या है, कुछ नहीं पता होता है, तो उसमें पापानुबंध और पुण्यानुबंध दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल बेभान अवस्था में ही होते हैं। मतलब हम कोई कॉन्शियस नहीं करते हैं, कोई पुण्य भोग रहा है तो एक के मन में पुण्य का भाव आएगा साथ में और एक के मन में पाप का भी भाव आ सकता है। यस यस यस। तो दोनों एक, वो भी एक कुदरती रचना ही है, उसको हम कहते हैं कि भाई वो भाव कर रहे हैं और वो एक हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा भाव कर रही है, लेकिन वो भी एक अज्ञान अवस्था में ही होता है। पर अज्ञान अवस्था में भाव करना और जागृत अवस्था में भाव नहीं करना, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंडिविजुअल पुरुषार्थ।
तुमको अज्ञान रहने का किसने कहा? जब आत्मा अनंत ज्ञान वाला है तो अज्ञान में रहने का किसने कहा? नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग को तो ज्ञान हुआ ठीक नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन नॉर्मल जो मैं प्रिंसिपल की, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली। मैं यही बात करता हूं कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है, तो फिर अज्ञान रहने का किसने कहा? उनकी ही तो कमजोरी है ना। Why they don't know the fact of universe? Why? किसी ने मना तो किया नहीं है, किसी ने मना तो किया नहीं है, क्योंकि वो पहले किसी से सुना ही नहीं है, किसी हाँ तो को पता ही नहीं इसके बारे में। वो भी मैं वही तो कहता हूं, क्योंकि सुना नहीं है, क्योंकि बीज नहीं है, तो फल कैसे आएगा सुनने का? ठीक है, राइट। कोई भी बात का मैं बीज नहीं लगाऊंगा तो फल कैसे आएगा? अगर मेरे पास आज ऐसा है कि मेरे को कोई ज्ञानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला, मगर मेरे को इतना समझ में आया शास्त्र ज्ञान के माध्यम से या तो धर्मगुरु के माध्यम से कि अगर मेरे को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष चाहिए। ऐसा मेरे को समझ प्राप्त हुई, मिला नहीं, मगर मैं भाव तो कर सकता हूं ना। राइट। तो भाव करूंगा तो भी फल आएगा ना। राइट। अगर फल नहीं आता है तो दिस इज नॉट मिस्टेक ऑफ टुडे, मगर प्रीवियस डे तो मेरी मिस्टेक थी, राइट, जाने और अनजाने में। ठीक है। तो अज्ञान से कर्म बनता है, वो कर्म बांधने वाले को मालूम नहीं होता है, वो मैं बात को स्वीकार करता हूं, मगर वो अज्ञानता से बना हुआ कर्म भी उसको भुगतान करनी पड़ेगी। वो नहीं जानता है, उसमें कुदरती कानून में एक्सक्यूज नहीं है। राइट, नहीं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई हाँ, तो कोई बात आप नहीं जानते हैं, कोई बात आप नहीं जानते हैं और बाद में आपने गलती कर दिया है बीज के रूप में, तो फल तो आएगा उसका नहीं। वो मेरा प्रश्न वहां पर नहीं, हाँ, मेरा प्रश्न वहां पर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि भी जो है पुण्य भोगते समय जो हम पाप का अनुबंध करते हैं या पुण्य का अनुबंध करते हैं, वो दो व्यक्तियों के अंदर डिफरेंट क्यों होता है? उनके ज्ञान दर्शन के ऊपर डिपेंड है। ज्ञान दर्शन जो पहले से लेके आए हैं, तो वही तो है। मैंने क्या कहा, पिछला अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, ये तीनों का क्यूमुलेट होके वो पुरुषार्थ कर सकते हैं एनी पर्सन ऑफ द यूनिवर्स, मगर होगा उसी का तो उपयोग करेंगे, नहीं हो तो कैसे करेंगे? तो मतलब जो भी हमारा ज्ञान मिलने से पहले जो चार्जिंग होता था या ज्ञान मिलने के बाद भी जब हम जागृति में नहीं रहते हैं, तो हमारा जो कुछ भी रिलेटिव का जो पुरुषार्थ होता है वो पहले के ज्ञान दर्शन के आधार पर और आज के संयोग के आधार पर होता है। यस। और अगर हम आज का नए ज्ञान का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसको हम बदल सकते हैं, चाहे रिलेटिव की तरफ या रियल की तरफ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जरूर जरूर। ज्ञान दर्शन को तो चेंज कर सकते हैं, मन वचन काया की अवस्था को नहीं बदल सकते, ज्ञान दर्शन को तो बदल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, व्हाई नॉट। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और उसके मन में विचार आता है कि भी मैं सबका कल्याण करूं और इसको मैं समाज सेवा के अंदर खर्च करूं, और एक और व्यक्ति है, उसके पास भी मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन वो किसी तरह से वो सोचता है कि भी मैं और कमा लूं अपने लिए और इकट्ठा करूं, किसी तरह से इकट्ठा करूं। तो ये जो दोनों तरह के जो भाव अलग अलग होते हैं जो कि चार्ज के रूप में इकट्ठे होते हैं आगे के लिए, या तो उसका कारण पहले का ज्ञान दर्शन। ऑफ कोर्स, ओके, मगर यूज आप करते हैं ना आज, यूज आज करते हैं, दैट्स तो मतलब बेसिकली तो यूज इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट द न्यू कॉज। तो मैंने क्या कहा, विथ करंट इंटेंशन यू क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। इंटेंशन करंट इन एनी सिचुएशन, जो आप उस समय का आपका इंटेंशन है
वो इंटेंशन के आधार से अंदर ज्ञान दर्शन आता है। वो ज्ञान दर्शन का उपयोग इंटेंशन से होता है एंड देन प्रोसेस इन अ मन बुद्धि चित्त अहंकार। सो माइंड स्पीच, मन बुद्धि चित्त और अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ योर इंटेंशन एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग का प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का बीच। इंटेंशन पहले का या इस अवतार का? अभी का करंट ज्ञान दर्शन से इंटेंशन खड़ा होता है एज पर योर ज्ञान दर्शन, एज पर योर ज्ञान दर्शन इन अ करंट सिचुएशन। आपके पास जो भी ज्ञान है उसका मतलब ये नहीं है कि ये समय में आप ज्ञान उपयोग कर ही रहे। इट इज नॉट कंपल्सरी। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस एट दैट टाइम इन सिचुएशन। मेरे पास ज्ञान है, मैं उपयोग नहीं करूंगा तो मैं नरगति का कर्म बांध सकता हूं ज्ञान होने के बावजूद भी, क्योंकि उपयोग नहीं है ना। तो होना काफी नहीं है, टू यूज इट इज इम्पोर्टेंट। और आपको यह भी मालूम है कि जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो भी आज नरक में है। वाई? क्यों? उनके पास ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान तो होगा, मगर अज्ञान होने के नाते, यानी संपूर्ण अज्ञान खत्म नहीं हुआ है, 1% 2% भी अज्ञान बाकी है, तो इसका यूज करके वो नरगति में कर्म बांधेंगे, फिर अज्ञान खत्म कर देंगे सेम बर्थ में। मगर एक बंद हो गया तो रिजल्ट तो आएगा ही, भले आप तीर्थंकर बनोगे ऑफ कोर्स। ये जो इंटेंशन की जो बात आपने बताई कि जो पहले के ज्ञान दर्शन के आधार पर इंटेंशन खड़ा होता है, इसका एग्जांपल देंगे कि क्या इंटेंशन आप किसको बोल रहे हैं? हाँ। इंटेंशन का मतलब होता है कोई रिलेटिव सत्य में, मानो कि हमको बहुत प्रॉफिट होता है बिजनेस में, नौकरी में, वगैरह वगैरह में। एट दैट टाइम माई इंटेंशन इन अ सब्जेक्ट टू मनी। प्रकृति को तो रहेगा, प्रकृति का सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति का सब्जेक्ट मनी रहना वो कुदरती रचना है, मगर हमारा इंटेंशन यानी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मेरा इंटेंशन तो ये है कि प्रकृति, बाहर की अवस्था और अंदर की सोच जो है, दोनों, बाहर की अवस्था और अंदर की सोच, ये दोनों कुदरती रचना ही है। और मेरे लिए सुख ये मेरा स्वभाव है, सुख प्राप्ति का विषय नहीं होना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए। मगर मेरा इंटेंशन अवस्था के साथ जुड़ गया कि नहीं, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा अच्छा काम करूंगा, ज्यादा अच्छी तरह रहूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया, हैज अ इंटेंशन, दे क्रिएट द न्यू कॉज। मतलब जैसा भाव खड़ा हुआ अंदर, उसके साथ में मिल गया, उसका करेक्शन नहीं किया। दैट्स इट। यही तो बात है। तो मतलब जो भी भाव खड़ा हो रहा है, चाहे वो डिस्चार्ज में है या उसका पापानुबंध का या पुण्यानुबंध का जो भाव खड़ा हो रहा है उसके साथ में, एक्चुअली तो दोनों ही डिस्चार्ज में है, दोनों ही डिस्चार्ज ही है। डिस्चार्ज में आप कनेक्ट हो गए तो चार्ज हो गया। राइट। उसको कुदरती रचना नहीं देखा। That's it. This is the proper word. कुदरत इतना नहीं देखा, then you are attached. Then you are responsible. मतलब अगर कुदरती रचना देखा है तो फिर पापानुबंध कुछ नहीं है, पापानुबंधी पुण्य बंध ही नहीं है, बंदी नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा, कर्म क्रिया से नहीं होता है, कर्म भाव से होता है। और वो भाव का मतलब होता है हमारे पास ज्ञान दर्शन होते हुए भी उसका यूज न करना, दे कन्वर्ट इन अ भाव। ज्ञान दर्शन आपके पास सम्यक है, मगर यूज नहीं करोगे तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब ज्ञान दर्शन यूज किया कि भी मैं शुद्धात्मा हूं, ये कुदरती रचना है। That's it. Then you are no बंध, no any kind of बंध। तो फिर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का बंध होगा।